Hello friends and welcome to Suraj GVAC, our YouTube channel. And it's been a long time since I have uploaded a video because I was busy in my business. काफ़ी लोगों को मैं मिल चुका हूँ रिगार्डिंग ईवी चार्जिंग स्टेशन लगवाने के लिए। तो बहुत सारे साइट्स ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं। तो कोकण में कर रहे हैं और सोलापुर में कर रहे हैं। सो इन वेरी फ्यू डेज वील हैव few chargers in these areas which are not yet represented by any chargers. There are no DC chargers over there in these areas. So maybe in a couple of months we'll have a charging facility over there. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरी टाटा नेक्सॉन का जो मेरा ड्राइविंग स्टाइल है वो दिखाऊंगा कि जिससे आप सिटी ड्राइव में भी स्पोर्ट्स मोड में अच्छा वैट आवर पर किलोमीटर मेंटेन कर सकते हो और आपका डीटी या फिर जो अल्टीमेट रेंज है आपके व्हीकल की वो आपकी बेहतर आ जाएगी. So in my previous videos also I have told you to how to drive your Nexon in a single pedal drive mode. तो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं खुद चला के दिखाऊंगा गाड़ी. So what we have done is we have charged our Tata Nexon overnight for 100%. And अभी जो ये दिखा रहा है यानी DTE दिखा रहा है वो है 228. पर घबराने की ज़रूरत नहीं है. ये 228 या फिर थोड़ा कम इसलिए दिखा रहा है कि लास्ट जो 5, 10 या 15 किलोमीटर्स का मेरा ड्राइव था वो काफ़ी फुर्तीला था. थोड़ा मैंने तेज़ गाड़ी चलाया है तो इसलिए वो थोड़ा बढ़ गया था. तो कोई इश्यूज़ नहीं है, वो एडजस्ट हो जाएगा दोबारा से. जब भी मैं ये अभी शुरू से मैं ड्राइव करने लगूँगा तो वो तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा और आपको भी पता चलेगा कि वो कैसे खुद ब खुद एडजस्ट होता है और आगे चल के वो रेंज 250 प्लस हमको दे देगा. तो ये वीडियोस मैं पार्ट बाय पार्ट अपलोड कर रहा हूँ और क्योंकि एक और अंतिम में एक फुल वीडियो भी बनाऊँगा बिकॉज बट दैट विल बी अ वेरी बिग वीडियो. तो उससे अच्छा है कि एक छोटे छोटे पार्ट्स करके मैं ये वीडियोस डाल दूँ so that you can follow these videos and you can see how I drive my car and how I get good readings on my watt hour per kilometer and good range on my Tata Nexon EV. So guys, see you then during the drive. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख रहे हो हमने अपनी ड्राइव शुरू की है. वी हैव पुट द कार इन स्पोर्ट्स मोड and you can see the DT showing is 228, the SOC at 100%. So the watt hour per kilometer opens up after about 0.5 or 500 meters and then it starts showing. So let's see at what number we open our watt hour per kilometer. Lower the better, but it has opened at 160 and has gone over to 180. No issues because there was some traffic initially, but you can see that it has come down to 142 within 3 to 400 meters. So let's see how it goes ahead, and I think it should settle around 105 to 110 ultimately in the whole run. I'm not saying it will come down to that figure today or not, but certainly it will be around 110 to 115 initially when we finish this video, and later on as we finish our video it will be around 105 to 110. So let's begin our journey. Now we have almost done 2 kilometers and watt hour per kilometer is at 123 and no issues regarding the range. Also it has come down only by 1 kilometer. So let me tell you about the driving conditions which I am driving right now. It will be fully city drive.
no highway drive will be included as on today at least. Later on maybe, but maximum of the drive will be done in the cities. So the traffic conditions won't permit speeds above maximum of 60 किलोमीटर्स पर आवर. तो इसमें भी हम लोग स्पोर्ट्स मोड पे चला के आपको जो वैट आवर पर किलोमीटर है वो मिनिमम रखने की जो टेक्निक है वो आपको बता देंगे. तो जैसा कि आप देख रहे हो अभी भी वैट आवर पर किलोमीटर नीचे आके 120 पे सेटल हुआ है. और जो DTE है वो 226 दिखा रहा है. सो वी हैव ऑलमोस्ट गेन्ड 4 किलोमीटर्स. तो आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो स्पोर्ट्स मोड पे 96% तक बैटरी जब तक नीचे नहीं आती तब तक काम नहीं करेगा. सो इन दिस केस whenever you have to stop your vehicle or reduce your vehicle speed, you have to release your accelerator quite before, or you'll have to rely on your brakes. तो अभी जो गाड़ी स्टॉप हुई थी वहाँ पे एक सिग्नल था, तो सिग्नल के बाद हम लोग फिर से शुरू हो गए. सो यू कैन सी अभी यहाँ पे जो मैंने कैमरा लगाया है थोड़ा सा पोजीशन गलत हो गया है. यू आर नॉट एबल टू सी द इकोग्राफ इन दिस मोड. आगे चल के मैं वो ठीक कर दूँगा, पर अभी आपको इसी पे काम चलाना होगा. और ये वीडियो का स्पीड मैंने 4 टाइम्स बढ़ा दी है क्योंकि नहीं तो वो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता एंड इट वुड हैव बीन बोरिंग. तो अभी आप देख रहे हो कि 7 किलोमीटर्स हम लोग कवर कर चुके हैं. वैट आवर पर किलोमीटर इज़ कम डाउन टू 119 और DTE अभी भी 226 ही दिखा रहा है. सो वी आर गेनिंग ऑन DTE और वैट आवर पर किलोमीटर भी इट्स अंडर कंट्रोल. तो जैसा ही आपका SOC है वो 96% के नीचे आने लगेगा, रीजन काम करना शुरू कर देगा. और इन दैट केस मैंने अपनी ड्राइविंग स्टाइल ऐसी बनाई है कि मेरे को ब्रेक लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. और मैक्सिमम आई कंट्रोल माई कार ओवर रीजनरेटिव ब्रेकिंग, और उसी से मैं ब्रेक भी कर लेता हूँ और बैटरी भी अपनी थोड़ी सी चार्ज कर लेता हूँ. तो अभी 97% है और 9 किलोमीटर्स हम लोग ये कर चुके हैं, यानी 3% में ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स पर परसेंट हमको ये मिल रही है, विच इज़ गुड. तो ऐसे ही चलते रहेंगे तो 100% में हम लोग आराम से 300 पार हो जाएंगे, 300 के पार हो जाएंगे. बट आई डोंट क्लेम 300 किलोमीटर्स एट ऑल बिकॉज ट्रैफिक कंडीशंस एंड अदर सर्कमस्टांसेस डू वेरी. बट 250 तो मेरे को आराम से इस स्पीड से मिल जाएगा. तो देखते हैं आगे चल के कैसे ये होता है. तो नाउ द SOC has come down to 96 and you can now will be able to see the blip on the lower side of the graph showing that the regenerative braking has started. And with this the watt hour per kilometer will come down in a very quickly, and DT will start moving up. Already you can see it is hit 230. तो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स वैसे भी हम लोग गेन कर चुके हैं एंड वी हैव ऑलरेडी ड्रिवन 11 किलोमीटर्स. तो इन ऑल हम लोगों को 13 किलोमीटर्स का गेन हुआ है इसमें. तो अच्छा आगे चल के देखते हैं कैसे. नाउ 232 द DTE. As I told you, this is a city drive, so the speed will be limited. I will also make a video in which I will be driving it on the highway also, and still the DTE will the watt hour per kilometer will be below 110. It will be between 105 to 110 in sports mode. I will show you that also. But let's continue with this video. So almost 12 kilometers in 4%, still maintaining about 3 kilometers per percent.
So in my previous videos I have told you that instead of relying merely on regenerative braking, make maximum use of the coasting effect which you get. तो इससे क्या होता है, आपका बैटरी कंजम्पशन जो है वो मिनिमम रहता है, ना के बराबर रहता है इनफैक्ट, एंड यू गेट बेटर रेंज एंड गुड वैट आवर पर किलोमीटर रीडिंग्स. तो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर दिस वीडियो. तो ऑलमोस्ट 15 या कुछ 16-17 किलोमीटर्स हमने चलाई थी इस वीडियो के दौरान गाड़ी. सो यू कैन सी दैट द SOC is about 95%. We have covered distance of nearly 15 kilometers. और DTE जो है that is at 239. So we have gained about 12 kilometers and 15 किलोमीटर का हमने रनिंग किया है. So almost 27 किलोमीटर गेन कर चुके हैं हम लोग. तो वैसे देखा जाए तो द रेंज इज़ ऑलरेडी 250 के ऊपर है. तो I think we'll stop here for the time being and see you in the next video. Thank you.